Okay, hello everyone. In the previous video, we covered that the graph of function and some basic graphs, and then vertical line test. And in this video, we will cover the translation or shifting of functions of graph of functions, and then the reflection of graph of functions, and then the stretching and compressing of graph of function. First of all, we have two kind of translation or shifting of graph of functions. One is the vertical shifting and another one is horizontal shifting. Mean ke vertical, either your graph can be translated or shifted upward or downward, and the horizontal, maybe your graph will be shifted toward right or left. So for example, if you have a graph, for example x squared, so this is, you know that this is a u-shaped graph, this one passing through origin. So if I add or subtract something into y, not in x, so this x squared is in fact y. If I am adding something into this y, not x, here I'm not adding 1 into x, I'm adding 1 into x squared, which is y in fact. So I'm adding 1 into the output. Then this is my original graph x squared. If I add 1 into it, so this will shift the graph one step up. So this will be my new graph x squared plus 1. Similarly, if I subtract 1 from this graph, so this my original graph will be shifted one step downward. So this will be x squared minus 1. So that is the vertical shifting. If you add or subtract something into y, not x. So if you're adding or subtracting something into y, then it will be a vertical shifting. If it's positive, upward, and it's negative, downward. And what about if you add something into x, not y? So in the same example, you know that its graph is u-shape, this one passing through origin. So now if I add 1 not into this y, I mean not into x squared, but into input. So if I add 1 into the input, so this one, so now this is not the vertical shifting, this will be horizontal shifting. But in the horizontal case, it's reverse. If it's positive, it will go toward left, and if it's negative, it will go toward right. Why? The reason is that if you find the x-intercept, you know, x-intercept is the point where the graph intersects the x-axis. So for x-intercept, your y will be 0. So when your y will be 0, you want to see that where your graph will intersect. Right now it's intersecting at 0, but since this graph has to be shifted either left or right, for example, you don't know, you are confused that it will go toward right or left. Since this has to be shifted, so this point of course will be shifted either here or here, but you are confused which direction, this one or this one. So this point is in fact the x-intercept, where the graph intersects the x-axis. So if you put y is equal to 0, so this x plus 1 square will be 0. It means x plus 1 will be 0, so x will be minus 1. And if you see, this minus 1 will be on the left side, not on the right side. So it's mean this was our original graph, okay? And then one step here, so this will be your new graph, which is x minus 1 whole square, okay? So whenever you have x plus 1 whole square, so y is equal to x plus 1 whole square, and if you had y is equal to x minus 1 whole square, then this graph will be shifted one step here. So when negative toward right and positive toward left, and how much? This unit, 1 unit. So this explained it here, that if you add c or subtract c from this y into y, then it's a downward or upward. And if you are adding c into x, then if it's positive, it's left, and it's negative, then it's towards right. Let's see an example. Here you see, you know, the graph of the absolute value function is b shape, and it's plus 2. This plus 2 is with the output or with the input. If you say this with the output, okay, so your original graph doesn't change. I mean कि this original function preserves, और ये उसके बाद ऐड है, इसके अंदर ऐड नहीं है, ठीक है, बाद ऐड है. एनी फंक्शन देखो ये कंप्लीट है, उसके बाद ऐड है. तो दिस विल, ऑफ कोर्स दिस विल बी अ वर्टिकल शिफ्टिंग, एंड सिंस इज पॉजिटिव इट विल गो 2 स्टेप अप, इसलिए देखो ना 2 स्टेप ऊपर गया हुआ है. अब यहाँ पर देखो ये अंदर है, x माइनस, ये अब जो माइनस हुआ हुआ ये अंदर है. x के साथ अगर हो, इनपुट के साथ हो, दैट इज़ अ हॉरिजेंटल शिफ्टिंग. एंड इन द हॉरिजेंटल शिफ्टिंग, इफ इट्स अ नेगेटिव साइन, इट विल गो टूवर्ड राइट. दैट स्टेप मीन कि 2 है तो 2 स्टेप टूवर्ड राइट, एंड इफ इट्स पॉजिटिव देन इट विल गो 2 स्टेप टूवर्ड लेफ्ट. सो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है, सो दिस ग्राफ, दिस ओरिजिनल ग्राफ जो हमारा यहाँ बनना था, उसने अब 2 स्टेप इधर आके बनना है, ठीक. अब यहाँ पर देखो, हेयर वी हैव 2 काइंड ऑफ शिफ्टिंग. एक हॉरिजेंटल है, मतलब अंदर भी सब्ट्रैक्ट हुआ और बाहर भी ऐड हुआ हुआ है. सो आप पहले एक कर लो, फिर दूसरा कर लो. अभी इस 1 को भूल जाओ,
ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना बनाओ, इतना बनाएंगे तो ये बनेगा, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद मतलब ये जब बन गया, अब उसके बाद +1 है और वो +1 आंसर में एक्स के साथ नहीं है। जब आंसर में हो मीन वाई के साथ हो तो वो हमेशा वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। तो अब ये जो हमारा ग्राफ इतना बन चुका है, ठीक, अब उसमें हम +1 कर रहे हैं, मतलब अब इस जब आंसर में +1 करते हैं ना आफ्टर दैट फंक्शन, तो दैट इज़ अ वर्टिकल शिफ्टिंग। प्लस है तो इसने एक स्टेप ऊपर चले जाना है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ बनेगा। सो देयर इज़ अ 2 शिफ्टिंग हेयर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, बोथ एट द सेम टाइम। किसी भी एक को आप पहले कर लो, बेहतर है पहले इतने हिस्से को कर लो, ठीक है, फिर आप +1 से और ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में नेगेटिव साइन होता है, ठीक। अब वो नेगेटिव साइन में बी विद ओनली इनपुट एक्स के साथ हो एंड इट कैन बी विद द आउटपुट। इन दिस केस इफ़ यू सी दैट एक्स के साथ है, अगर सिर्फ एक्स के साथ हो तो वो जो ओरिजिनल हमारा ग्राफ होगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट वाई एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस के अबाउट। यानी अगर देखो ना, अगर ये हमारा चलो मैं ये भी बता देती हूँ उसके बाद एग्जांपल से। और अगर वाई के साथ माइनस है, बाहर है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये वाली एग्जांपल अगर आप देखो, ये एक्स के साथ नहीं है, आउटसाइड द फंक्शन है। देखो ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारा एक कंप्लीट फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, और वी नो इट्स ग्राफ इज़ लाइक दिस वी शेप एंड दिस इज़ नॉट विद एक्स, दिस इज़ आउटसाइड। आउटसाइड हो तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है? एक्स एक्सिस। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, यानी इस एक्स एक्सिस के बाद इसने रिफ्लेक्ट हो जाना है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मिरर। मतलब यहाँ पे ये मिरर है और यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, अब उसका जो इमेज है वो इस मिरर पे किस तरह पड़ेगा? ऐसे पड़ेगा ना। सो इसे अगर आप पेज और पेज को यहाँ से फोल्ड करते हो और यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ जब पेज फोल्ड करोगे वो इधर आ जाएगा। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक। और अगर अंदर हो, एक्स के साथ हो, तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। उसकी रीज़न ये है कि जब बाहर होता है तो चेंज कहाँ आ रहा है? देखो ना, एक एफ एक्स है, एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, दूसरा है y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो चेंज कहाँ आ रहा है? y में आ रहा है ना, मतलब y पॉजिटिव था नेगेटिव हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ऊपर y पॉजिटिव होता है, उसको हम x एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसका y नेगेटिव होगा ना, क्योंकि y नीचे नेगेटिव होता है, ठीक। सिमिलरली अगर x के साथ, आप ये वाली एग्जांपल अगर आप देखो, स्क्वायर रूट का ग्राफ ऐसे होता था, दिस वाज द स्क्वायर रूट। नाउ दिस यू हैव अ नेगेटिव साइन बट विद इनपुट, बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर हो तो दिस ए रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, मतलब ओरिजिनल ग्राफ यूँ था, लेकिन अब वाई एक्सिस के लॉन्ग इसने रिफ्लेक्ट होना है तो वो इधर आ गया, ठीक है। अब इसने क्यों वाई के लॉन्ग रिफ्लेक्ट होना है? क्योंकि एक्स माइनस हो रहा है, एक्स यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, यानी एक्स पहले पॉजिटिव था, अब उसने नेगेटिव। अगर एक्स पहले नेगेटिव होता तो उसने इधर पॉजिटिव हो जाना था, ठीक। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स एक्सप्लेन यू वन अनदर एग्जाम्पल। अच्छा, ये हो तो हम क्या करेंगे? कैन यू थिंक अबाउट दिस वन? यू ऑलरेडी नो दिस पार्ट। इसमें 2 काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है। वन एक्स के साथ रिफ्लेक्शन है जो कि रिफ्लेक्ट हुआ अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो कि हमने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। अब उसके बाद बाहर है, बाहर हो तो वो रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी पहले आप इतना हिस्सा बना लोगे तो ये बन जाएगा। अब दोबारा माइनस है तो इसने अब रिफ्लेक्ट होना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे आएगा, मतलब हमारा ग्राफ ये बनेगा, दिस वन इज़ नेगेटिव ऑफ एक्स। आई थिंक इट्स क्लियर। So similarly for stretching and compressing, usually this is the rule for compressing and stretching, mean कि if you multiply with a number with a function। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से ना ग्राफ शिफ्ट कभी नहीं होता, शिफ्ट हमेशा होता है ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ नंबर तो उसकी मतलब ग्राफ शिफ्ट कहीं नहीं होता, उधर ही होता है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है। हो सकता है वो कंप्रेस हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, मतलब यूँ हो सकता है। अब ये अगर तो c ग्रेटर दैन 1 है तो ग्राफ स्ट्रेच होता है लॉन्ग वाई एक्सिस, और अगर 0 से 1 के दरमियान है तो ग्राफ कंप्रेस होता है लॉन्ग वाई एक्सिस। लेकिन ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपने रट्टा लगाना है कब c ग्रेटर है तो ये होगा। उसका सिंपल वे ये है कि आप, मैं एग्जांपल से बताती हूँ, अगर आपने स्ट्रेचिंग आ जाती है, जिस तरह इसमें से कोई एग्जांपल हो, ये वाली, आई थिंक ये वाली, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है तो पहले हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हमारा होता है यू शेप, ठीक है। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, c पॉजिटिव है, c ग्रेटर दैन 1 है तो स्ट्रेच होना है कि कंप्रेस होना है कि क्या होना है। तो इसका सिंपल वे ये है कि आप ऐसा करो कि x की कोई वैल्यू इसमें पुट कर दो। x को आप ले लो, फॉर एग्जांपल 1 ले लो, 1 वैल्यू इज़ इनफ, ठीक है।
ज़ीरो के अलावा ज़ीरो ज़ीरो तो उधर ही रहेगा ना, क्योंकि ग्राफ ने शिफ्ट तो कहीं नहीं होना, सिर्फ हो सकता है ये थोड़ा वाइडर हो जाए या नैरो हो जाए। ठीक, रहना तो उसने ज़ीरो ज़ीरो पर ही है, रहना स्टार्ट उसने इधर से ही होना है। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई एक वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ले लो। x1 ले लिया, x1 जब मैं पुट करूँगी इसमें तो y क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट देखो कहाँ आएगा, ओरिजिनल ग्राफ तो हमारा ये था, मतलब ओरिजिनल ग्राफ जो हमारा जब x1 है तो y भी 1 था। अब मेरा x1 है और y2 है, मतलब अब ये वाला पॉइंट इधर आएगा। ठीक, x1, तो इसका मतलब अब ये जो ग्राफ है यहाँ से अब पास होगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है तो सेम इसी तरह। तो अब देखो ना ग्राफ थोड़ा नैरो हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेच हो रहा है लॉन्ग y एक्सिस, तो ये न्यू ग्राफ बनेगा। तो इसका तरीका यही है कि आप बस एक पॉइंट ले लो, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने इट विल पास थ्रू दैट पॉइंट। सिमिलरली दिस वन, अगला वाला देखो 1/2x², ये भी वही है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से और वो नंबर 1/2 है जो कि 1 से लेस है। वो कंडीशन थी ना, अगर 0 से 1 के दरमियान है तब क्या होगा, लेकिन वो चीज़ें याद अगर नहीं भी रखनी आपने कि कब स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, सेम वही मेथड आप इसके लिए कर सकते हो। यू कैन टेक अ वैल्यू x = 1, ठीक है, y आ जाएगा 1/2। तो अब जो मेरा ग्राफ है x1 है तो y हाफ है, तो इसका मतलब यहाँ से गुजरेगा, तो इसका मतलब देखो ना ये ज़्यादा अब वाइड हो रहा है, पहला वाला यूँ नैरो बना था तो अब ये वाइड बना है। ठीक है, तो ये हमें आइडिया हो जाता है एक पॉइंट से ही कि वो स्ट्रेच हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक, सो now you can solve these exercises. In first question you have to find the domain and then composition function, and third question you have to find the inverse function, and in the fourth you have to sketch these graphs. Let me explain this graph for you, the last one. If you know absolute value of x क्या होता था, by definition this is either x or minus x. x होता है जब x greater than equal to 0 हो, और नेगेटिव होता है जब ये लेस दैन 0। तो इसका मतलब है अगर आप इसके दो ऑप्शंस बनेंगे, अगर आप इसको x कंसीडर करोगे तो x/x 1 हो जाएगा, ये कब है जब x greater than equal to 0 है। और अगर आप इसको दूसरा वाला कंसीडर करो -x, तो ये कट के बाद -1 आ जाएगा, ये x लेस दैन 0। तो इसका जो ग्राफ है वो पीस वाइज है, तो इसका मतलब है कि जो y है वो 1 है और -1 है। 1 कब है जब x greater than 0 है, और -1 कब है जब x लेस दैन 0। तो उसको ड्रा कैसे करें, ये देखो ना, क्या आया था आंसर, एक आया था 1 और एक आया था -1। 1 कब आया था जब x greater than equal to 0 है, और -1 आया था ये। तो इसका मतलब जब x greater than equal to 0 है, ये वाला जो पार्ट है इसमें y की वैल्यू 1 है, y1 कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वाला ग्राफ सारा आ गया, ये सारा पार्ट यहाँ तक। और जब x नेगेटिव है तो y की वैल्यू -1 है। 0 को हम यहाँ या यहाँ लेंगे या किसी एक में, दोनों में नहीं लेंगे, उधर ले लेंगे तो यहाँ पे ओपन। तो ये हमारा पार्ट ऑफ ग्राफ है, दिस वन एंड दिस वन इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो।